गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट में चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लिया था और कुछ एग्जांपल्स और कुछ नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करवाए थे। आई होप सो कि आपने उससे बहुत अच्छे से कर लिया होगा। और टुडे वी विल टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 नेम इज area of parallelogram and triangle. Okay, so first of all we will discuss about the area of parallelogram and triangle, then we will talk about the theorems related to the chapter. Okay, so first of all we should know that what is the formula of parallelogram with diagram. Okay, this is the parallelogram. ABCD, this is the parallelogram. It means the property of it, opposite pair of the sides are parallel and equal. Okay, diagonals will bisect each other. Okay, this is the property of the parallelogram, that opposite sides are parallel and equal and diagonals will be bisect each other. Okay, now the area is base into height. The area is base into height. Now base will be AB and height will be, is not given, so draw it. X means dx. It will be the formula of the area of parallelogram. Okay, next is triangle. Triangle, do you know how many types of the triangle we have in our syllabus or in our daily life or in our maths? They are categorized two types of the triangle. First is based on sides and second based on angles. According to the sides, equilateral triangle, isosceles triangle, and scalene triangle. All the three sides are equal, equilateral triangle. Only two sides are equal, then isosceles triangle, and all the three sides are unequal, then it means scalene triangle. Okay, according to the angle, acute angle triangle, it means in the triangle, if we have in the triangle all the angles will be less than 90 degree, then it means it is an acute angle triangle. This is right angle triangle because in this triangle we have the 90 degree measurement of first biggest angle, and the last is obtuse angle triangle, because in this triangle we have one angle is more than 90, so it is called obtuse angle triangle. Okay, now the area of the triangle is simply form base into height, half. Okay, 1/2 base into height, it will be the area of triangle. Now here is some theorems regarding to the chapter. First theorem is in a parallelogram. Okay, this is a parallelogram and this is a triangle ABCD. Okay, this is the parallelogram ABCD and ABE is a triangle. Okay, now what is the relation between both according to theorem? If the vertices of the triangle touches the side of a parallelogram, it means the area of
triangle will be half of area of parallelogram. Means अगर कोई भी ट्रायंगल जो कि इस पैरेललोग्राम के बेस पे बना हुआ है और उसका कोई भी एक वर्टेक्स उसके अपोजिट साइड को टच कर रहा हो, ना तो बाहर जा रहा हो ना अंदर रह रहा हो, टच कर रहा हो, इट मींस इस ट्रायंगल का एरिया उस कंप्लीट पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ रहेगा. फर्स्ट थिंग इज. सेकेंड थिंग इज दैट कि अगर इट इज नॉट कंपल्सरी कि अगर कि ये जो ट्रायंगल है वो यहीं पे बने. यू कैन ड्रॉ लाइक दिस. ओके, लाइक दिस. कैसे भी बना लो, बेस वही होना चाहिए, ना तो कम होना नहीं चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए. सेकंड थिंग इज दैट कि इसका वर्टेक्स जो है वो अपोजिट साइड के टच करना चाहिए. तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट थ्योरम बनती है कि इस ट्रायंगल का एरिया जो है वो इस कंप्लीट पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ रहेगा. फर्स्ट थ्योरम. सेकंड, once again this is the parallelogram. Okay, now here are two parallelograms. First is ABCD, that was the original, and second is ABPQ, that was a duplicate. Now what will be the relation between both parallelogram? देखो, अगर किसी भी पैरेललोग्राम के पेयर को, पेयर का मतलब दो या दो से ज्यादा भी आप ड्रॉ कर सकते हो. अगर किसी भी पैरेललोग्राम के पेयर्स को अगर आप कॉमन बेस पे ड्रॉ करते हो और अपोजिट साइड्स के पैरेलल ड्रॉ करते हो, इट मींस वो उसी लाइन पे होना चाहिए. तो दोनों का एरिया इक्वल होगा. मतलब अगर दो या दो से ज्यादा पैरेललोग्राम अगर आप कॉमन बेस पे बना रहे हो और पैरेलल लाइन के बीच में बना रहे हो, मतलब उस पर टच होनी चाहिए, तो उन सारे के सारे पैरेललोग्राम का एरिया सेम होता है. सेकंड थ्योरम. ठीक है, पैरेललोग्राम का एरिया आपको पता ही है, बेस इनटू हाइट होता है, जो कि मैंने अभी बताया था आपको. अच्छा, उसके बाद जब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट थ्योरम पे, वो हमारे पास में रहेगा कि अगर ये हमारे पास में वंस अगेन पैरेललोग्राम दे रखा है. हमारे पास में अभी एक थ्योरम हमने पढ़ी थी फर्स्ट से सेकंड वाली कि इस ट्रायंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है. लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने पूछ लिया सिर्फ होता कैसे है, प्रूफ करके बताइए, तो कोई दिक्कत नहीं है. देखो, हमारे पास में पैरेललोग्राम का एरिया होता है, मैंने आपको बताया था बेस इनटू हाइट, और ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इनटू हाइट. ओके, अब इस पैरेललोग्राम का बेस कौन सा है? AB, और उस ट्रायंगल का बेस कौन सा है? AB. बाकी बच गई हाइट. हाइट हमेशा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होती है जो कि इस दोनों साइड्स के बीच में डिस्टेंस होता है. तो आप चाहो तो यहां पे ड्रॉ कर लो, यहां ड्रॉ कर लो, या यहां ड्रॉ कर लो. बिकॉज पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा इक्विवेलेंट होता है. चाहे आप उसे बाहर एक्सटेंड कर सकते हो, चाहे उसे इंटरनल आप ड्रॉ कर सकते हो, कहीं पे भी, लेकिन डिस्टेंस और मेजरमेंट सेम रहेगा. तो ये जो डिस्टेंस हमारे पास में आया, इन तीनों में से कोई भी आप ले सकते हो, वो डिस्टेंस परपेंडिकुलर रहेगा, इस पैरेललोग्राम की हाइट रहेगी, और वो सेम जो है वो इस ट्रायंगल की भी हाइट रहेगी. ओके, अच्छा, अब इसमें अपन ने इसको मान लिया EP, सेम चीज EP. ठीक है. अच्छा, यहाँ क्या लिखा हुआ है? AB इंटू EP और AB इंटू EP, बट यहाँ पे लगा हुआ क्या है? एक्स्ट्रा 1/2. इसका मतलब कि इस पैरेललोग्राम के एरिया का अगर हाफ कर दिया जाए
तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। तो ये हमारे पास में जो थ्योरम थी कि अगर हमारे पास में कोई भी दो, एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम अगर दे रखा हो और जो ट्राइंगल है उस पैरेललोग्राम के बेस पे बना हुआ हो और बिल्कुल पैरेलल लाइन के बीच में टच हो, तो उस ट्राइंगल का एरिया उस पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है। अच्छा, उसके रिगार्डिंग से हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे जो कि है हमारी पास में एक्सरसाइज नंबर 9.1। Chapter number 9, area of parallelogram and triangle. Okay. यहाँ पे आपको कुछ फिगर्स दे रखे हैं। इन फिगर्स से मैंने आपको बताया था कि आप पैरेललोग्राम बना रहे हो, कॉमन बेस पे बना रहे हो, लेकिन वो पैरेलल लाइंस के बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, मतलब टचेस में होना चाहिए। क्या नेक्स्ट वाला जो पैरेललोग्राम है, क्या इस पैरेललोग्राम के इक्विवेलेंट है? क्योंकि ये पैरेलल लाइंस के बीच में है लेकिन इसे टच नहीं कर रहा, तो ये है रॉन्ग। फिगर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, रॉन्ग। अच्छा, कॉमन बेस पे है, पैरेलल लाइन के बीच में है लेकिन टच नहीं कर रहा। यहाँ पे सिर्फ ये हमें बता रहा है कि पैरेलल लाइंस के बीच से बना हुआ है लेकिन टच नहीं कर रहा। हमारी थ्योरम के अकॉर्डिंग ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। लेकिन इसने सिर्फ और सिर्फ डायग्राम इसलिए बना रखे हैं बिकॉज इस सेम बेस और पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर हम आगे इसमें क्वेश्चन देखते हैं तो ये देखिए, मैंने आपको ये लाइन ड्रॉ करके बताई थी, तो यहाँ पे इसने क्या किया, इसे टच कर दिया, उसे भी टच कर दिया, दोनों को लोग इन दोनों की पैरेलल पे इक्विवेलेंट में लेकर आ गए और इस लाइन को भी हमने और एक्सटेंड करके पैरेलल लाइन के बीच में ड्रॉ कर दिया। अब ये चारों के चारों जो हमारे पास में डायग्राम्स हैं वो होते हैं सही, पहले रॉन्ग थे अकॉर्डिंग टू द थ्योरम। उसके बाद में जो एक्सरसाइज है हमारे पास में 9.1 जो कि उस थ्योरम से बेस्ड है, उस पे हम बात करते हैं कि फर्स्ट जो है विच इज द फॉलोइंग फिगर लाइज ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, इन सच केस वे राइट द कॉमन बेस एंड टू पैरेलल लाइंस। हमारे पास में जो 6 डायग्राम्स दे रखे हैं इनसे रिलेटेड हमें वो थ्योरम के अकॉर्डिंग एक तो लिखना है सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो कॉमन बेस हमें लिखना होगा और 2 पैरेलल लाइंस लिखनी होगी। पहले की बात करते हैं, ये जो पैरेललोग्राम है और जो ट्रायंगल है वो टच हो रहा है, कॉमन बेस कौन है, DC, और जो पैरेलल लाइंस कौन सी है, AB एंड DC। फर्स्ट। सेकंड की अगर बात करें तो कॉमन बेस तो हमारे पास में ऐसा होगा लेकिन पैरेलल लाइंस हमारे पास में नहीं है बिकॉज ये टच नहीं हो रहा। थर्ड की अगर बात करते हैं तो कॉमन बेस हमारे पास में रहेगा RQ और पैरेलल लाइंस रहेगी SP और RQ। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो हमारे पास में पैरेलल लाइंस तो दे रखी हैं लेकिन बेस कॉमन नहीं है बिकॉज इसने गैप छोड़ रखा है, तो ये रॉन्ग होगा। इसकी बात करते हैं हमारे पास में तो कॉमन बेस होगा हमारे पास में AD और पैरेलल लाइंस होगी AD और BQ। अब ये सोच रहे हो भाई ये डायग्राम हुआ कैसे, क्योंकि जिसमें गैप छोड़ रखा है, नहीं, पहला हमारे पास में ये वाला पैरेललोग्राम है और दूसरा हमारे पास में ये वाला पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे हमारे पास में कॉमन बेस हुआ AD और पैरेलल लाइंस जो हुई है हमारे पास में AD और BQ। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं इसकी बात, तो यहाँ पे इस पैरेललोग्राम में कॉमन बेस नहीं है बट पैरेलल साइड्स दे रखी है। तो यहाँ पे जो दो हमारे पास में पूछे गए थे, अगर इसमें से कहीं से भी एक पॉइंट में रॉन्ग हो जाता है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन रॉन्ग होगा। अच्छा, ये थी हमारे पास 9.1। इसमें सिर्फ आपको इतना ही दे रखा था और जो मैंने आपको बेस बताया उस बेस पे और जो फर्स्ट थ्योरम बताई थी कि
पैरेललोग्राम और ट्रायंगल में रिलेशन क्या होता है, उसके बेसिस पे हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया। ओके, तो ये भी हमारे पास 9.1। उसके बाद में हम बात करेंगे 9.2 के बारे में। अच्छा, इससे रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, ओके।